After the study of different type of minerals, now we know the conservation of mineral is necessary. So many ways to conserve the minerals. So we will study about the conservation of minerals. Conservation of minerals can be done by the following methods. Every country should realize that this wealth of nature is also for future generations. Therefore, the exploitation of minerals in the race of economic development should be limited so that a balance between man and nature is maintained. Human qualities should not be deteriorated due to competition. Each country should try to find the substitute of these minerals with the feeling of world brotherhood. Material which are polluting the environment should not be used. Substitute of mineral substances should be searched of. UN should monitor the exploitation and use of minerals by the countries. Now, power resources. We will study about the power resources, types, distribution, uses and conservation. Man is an active being. He uses power to perform each activity. In ancient time, his activities were limited. Slowly, he started using power resources like animals, wood, air, and water with the development of civilization. But now, basic resources like coal, mineral oil, and electricity are used for operating machines and transportation in this time of industrial development. Availability and use of these power resources both are necessary for economic development. So, we can say that the sources of power which are used by man for his different activities are known as power resources. Power resources may be classified into two categories. First, exhaustible resources and दूसरा renewable resources. Now, exhaustible resources. Exhaustible resources are those resources which are limited and exhaust with the use. For example, coal, petroleum, natural gas, etc. Renewable resources do not exhaust. For example, electricity, wind energy, solar energy, etc. Nowadays, power resources are the basis of overall development. Different activities like agriculture, industries, transportation, and other commercial activities are based on the availability of these power resources. Exhaustible resources are considered important because of their utility. At the same time, they become more important because of the doubt that they will be exhausted. Renewable resources can be replenished and will be available in future. The availability of these resources has become very important because man is very much dependent on them. After independence, power resources have increased rapidly in India. Government is also making continuous efforts to empower the country regarding power resources. Without this industrial development and national security is impossible. Ministry of Steel, Mining and Fuel are working in this direction. Present status of power resources in India is as follows. First is conventional sources of energy like coal, petroleum, natural gas and electricity. Second is non-conventional sources of energy, solar energy, wind energy, bioenergy, geothermal energy, etc. So students, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम किस तरह से कर सकते हैं कि हर जो देश है वह यह समझे कि ये जो हमको नेचुरल मिनरल्स मिले हुए हैं ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हैं, तो उनको बहुत ही सीमितता से यूज करें,
जितना बचत उनकी संभव हो सके उतना उनका बचाव करें, और ये ना करें कि कंपटीशन में हम जो हमारी ह्यूमंस क्वालिटीज हैं उनको ही डिस्ट्रॉय कर दें, और अपनी तरक्की के कारण दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। इसके साथ साथ जो पॉल्यूशन करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको स्टॉप कर दें, बंद कर दें। फिर जो बहुत सारे मिनरल्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट की खोज की जानी चाहिए, उनको सर्च करना चाहिए। इसके साथ साथ जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो इनके जो उपयोग हो रहे हैं मिनरल्स का, उन पर नजर रखे कि किस तरह से कहाँ पर यूज हो रहा है, और फिर अगर कहीं ज्यादा हो रहा है या उसकी बर्बादी हो रही है तो उसे रोकने का काम करें। नाउ वी आर स्टडिंग पावर रिसोर्सेस। हम पावर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस और कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, पहले के समय में जो नेचुरल चीजें थी, जैसे कि पशु होते थे, लकड़ियां होती थी, और एयर होती थी, वाटर होता था, इससे हम जो मनुष्य था वो यूज करके और अपना जो डेली वर्किंग जो है वो करता था और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, मशीनें बढ़ती गई, और इसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं नेचुरल, उनको जैसे कि कोयला हुआ, खनिज तेल है, और जो पावर रिसोर्सेस हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा होने लगा। और इनकी जो आप जैसे कि जानते हैं कि सभी चीजों की एक सीमित उपलब्धता होती है, उनका उपयोग भी सीमित होना चाहिए, लेकिन उपयोग असीमित हो गया और उसका प्रोडक्शन सीमित है। तो ये जो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारी ऐसी चीजों का संचालन करते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो ही कहलाते हैं पावर रिसोर्सेज। ये दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, और दूसरा रीन्यूएबल रिसोर्स। एक्सॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? जो कि सीमित होते हैं, मतलब हमारी धरती में सीमित है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये सारे सीमित हैं, हमको ये प्रकृति ने दिए हैं और लाखों करोड़ों वर्षों में बनते हैं, इनको हम दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका समाप्त होने का डर नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, और जो अपनी पवन एयर से जो शक्ति ली जाती है, वो एयर हवा वाली शक्ति, पवन ऊर्जा, और जो हमारी सूर्य से लेने वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ये समाप्त होने वाले नहीं है। हमारा भारत भी इन चीजों की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सबको कॉमर्शियल एक्टिविटीज इनकी बढ़ाने के लिए हमें पावर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, वो इस प्रकार से ध्यान दे रही है कि हम जो है इन चीजों का सही उपयोग कर सकें ताकि हमारे देश को प्रगति मिल सके। तो ये भी जो पावर रिसोर्सेस हैं, ये भी दो प्रकार से हम यूज हो सकते हैं। एक तो पहला तो है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। सेकेंड है नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, जो कि हमें असीमित प्रकृति ने प्रदान किए हैं। लेकिन जो बाकी के हैं, कोल है, ये सारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक हमें लिमिटेड मात्रा में प्रदान किए गए हैं। तो हमें इन सभी का बहुत ही सोच समझ के यूज करना है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।